Assalamu alaikum, dear students. Today we will take the methods of solid waste disposal. As it is the part of our previous topic, that is solid waste management. जो हमने इससे पहले पढ़ा था, solid waste management क्या होता है, इसके main objectives क्या है, that is to minimize the adverse effects of solid wastes on the environment. And what are its principal objectives? That is to collect the solid waste and then transport it and then dispose it at the final disposal sites. Now we will see what are the various methods of the various methods for the disposal of such solid waste at the final disposal site. The various methods are the various methods for the disposal of solid waste or first landfilling, second it is incineration, third it is composting, and fourth it is disposal into the sea. Disposal into the sea. So these are the various methods for the disposal of the solid wastes. Now we will take one by one. The first one, that is landfilling. हम देखेंगे landfilling जो है, it is the method of the solid waste disposal. So after the collection of the solid wastes from the initial disposal site, जब हम collect करते हैं ये solid waste को initial disposal site जो solid waste का है वहां से collect करते हैं solid waste को, then it is transported to the final disposal site. पहले collect करते हैं from initial disposal sites, then transported it to the final disposal sites. जो final disposal sites है, that means these solid wastes they are disposed of in the low-lying areas. Here low-lying areas means low-lying areas that means those areas which are of no use. इनकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इन लैंड्स को, इस एरियाज को यूज़ नहीं कर पाते हैं. सो दीज एरियाज आर देयर फॉर यूज फॉर द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. इसलिए हम इन एरियाज में, क्योंकि यूज़ हम इनको नहीं कर सकते इन एरियाज को, इस लैंड को, दैट मीन्स ये एरियाज जो है, ये लैंड जो है, दे आर यूज फॉर द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. और वी कैन से द सॉलिड वेस्ट्स. Solid wastes they are used for the filling of such lands. Used for filling of such lands. इसीलिए हम solid waste को filling of such lands. इसलिए हम solid waste को use करते हैं to fill up the such lands. हम देखते हैं कि जो land filling जो method है, ये हम कैसे करते हैं, इसमें हम कैसे dispose करते हैं solid waste को. Firstly हम देखते हैं जो land surface है, लैंड सरफेस, और वी कैन से द बॉटम, क्योंकि अब हमें डिस्पोज करना है सॉलिड वेस्ट को. जो लैंड सरफेस है या बॉटम जो है, इट इज कवर्ड विद impermeable lining. Impermeable liner. Here impermeable जो है, that means which doesn't permit any liquid to pass through.
इससे कोई भी लिक्विड जो है वो इसको परमिट नहीं करेगा। दैट मीन्स ये इम्परमिएबल लाइनर वो लाइनर होता है जो किसी भी लिक्विड को पास नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंड सरफेस है इसको हम बॉटम पे एक ऐसी लाइनर यूज करेंगे जिससे कि लिक्विड जो है वो पास नहीं होगा। दैट मीन्स जो बॉटम पे हमने एक इम्परमिएबल लाइनर यूज किया, फॉर एग्जांपल हम क्ले यूज करेंगे और वी कैन से प्लास्टिक या कोई थिक प्लास्टिक हम यूज करेंगे बॉटम पे। इस क्ले से ये लिक्विड जो है वो पास नहीं होगा क्योंकि हमने सॉइल टाइप्स में पढ़ा था जो क्ले टाइप है वहां पर दैट हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर, greater capacity to hold water। इसलिए हम बॉटम पे क्ले यूज करेंगे क्योंकि जो लिक्विड है जो सॉलिड वेस्ट से निकलेगा दैट इज कॉल्ड लीचेट्स। The liquid which passes out from solid waste that is called leachates, को हम लीचेट्स बोलते हैं। यही लीचेट्स जो है इसको क्ले होल्ड करेगा। क्ले जो हमने बॉटम पे लैंड सरफेस पे हमने क्ले जो यूज किया, सेवरल लेयर्स ऑफ क्ले हमें यूज करना है बॉटम पे, यहाँ प्लास्टिक का भी यूज करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि जो लीचेट्स है ये क्ले इसको होल्ड करेगा। क्ले होल्ड द लीचेट्स जिसको हम फिर पंप करेंगे। These leachates they are pumped from bottom and then sent for the treatment। उसके बाद हम उसी लीचेट को ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे। उसके बाद अगर हम लैंड सरफेस पर छोड़ेंगे भी आफ्टर ट्रीटमेंट, हम इस लीचेट को छोड़ेंगे लैंड सरफेस पे तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो क्ले है ये होल्ड करेगा इस लीचेट को एंड this clay helps in prevention of seepage of leachates into the groundwater। इससे हमें मदद मिलेगा क्ले से ग्राउंड वाटर। क्या मदद मिलेगा हमें इस क्ले से, क्योंकि इसने लीचेट्स को होल्ड किया है ना, इट हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। अब इसने क्ले ने लीचेट्स को होल्ड किया जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूशन से बच जाएगा। यही जो सीपेज हो जाएगा अगर हमने क्ले का यूज नहीं किया होता बॉटम पे तो लीचेट्स जो है दे दैट सीप्स डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर, जिससे ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है और हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो इससे ये मदद मिलती है क्ले से कि ये लीचेट्स को कंट्रोल करता है, जिसके बाद हम इसको पंप करके फिर ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं इसी लीचेट्स को। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हमने जो बॉटम पे क्ले यूज किया उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये है सॉलिड सरफेस, ये सरफेस लैंड सरफेस, दिस इज द लैंड सरफेस। इसके ऊपर हमने क्ले का यूज किया। सेवरल लेयर्स ऑफ क्ले का यूज हमें करना है। क्ले के ऊपर हम डालेंगे सॉलिड वेस्ट। मान लो ये है सॉलिड वेस्ट, the thickness of this solid waste, its thickness should be 1.5 मीटर। जो हमने सॉलिड वेस्ट इसके ऊपर डाला क्ले के ऊपर, इसकी जो थिकनेस जो इस लेयर की इसकी होनी चाहिए 1.5 मीटर। इस सॉलिड वेस्ट के ऊपर हम डालेंगे मिट्टी। दैट मीन्स this solid waste layer it is covered with good earth and the thickness of this earth that should be about 20 centimeter। इस अर्थ की थिकनेस कितनी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। अर्थ these are the solid waste layer, इसकी जो थिकनेस वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अब हमने इस सॉलिड वेस्ट के ऊपर हमने क्यों अर्थ का यूज किया? बिकॉज जो डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा सॉलिड वेस्ट और एटमॉस्फेयर के साथ, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इस अर्थ का यूज किया। जो सॉलिड वेस्ट अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा एटमॉस्फेयर के साथ, दैट मीन्स जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है ना, वो इस पे ब्रीडिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो यहाँ पर जो फ्लाइज है, मॉस्किटोज है, वो ब्रीडिंग करेंगे। इसीलिए टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ दीज मॉस्किटोज और अदर फ्लाइज ऑन दीज सॉलिड वेस्ट लेयर, वी हैव टू यूज द इंसेक्टिसाइड्स। अब हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल DDT, the full form of DDT is dichloro diphenyl trichloro ethane। तो ये एक इंसेक्टिसाइड है जो हम इसके ऊपर यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ दिस मॉस्किटोज और अदर फ्लाइज, सो एज टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ वेरियस डिजीज। क्योंकि अगर इन्होंने ब्रीडिंग की सॉलिड वेस्ट के ऊपर या फ्लाइज ने, तो उसके बाद यही मॉस्किटोज या फ्लाइज जो है वो बहुत सारी डिजीज स्प्रेड करेंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ साइड डिजीजेस, वी हैव टू यूज द इंसेक्टिसाइड्स। हमने यहाँ पर DDT का यूज किया। अब यहाँ पर हमने देखा जो हमने क्ले यूज किया एट द बॉटम, फिर इसके बाद सॉलिड वेस्ट की लेयर हमने इसके ऊपर डाली एंड द थिकनेस ऑफ सच लेयर शुड बी 1.5 मीटर। उसके बाद हमने अर्थ का यूज किया, मिट्टी इसके ऊपर डाली एंड द थिकनेस ऑफ सच अर्थ शुड बी 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि जो ये लेयर हमने सॉलिड वेस्ट की डाली यहाँ पर, इट शुड बी लेफ्ट फॉर 7 days, एटलीस्ट 7 days। 7 days तक हमें इस लेयर को ऐसे ही रखना है। सो आफ्टर 7 days द नेक्स्ट लेयर ऑफ दिस सॉलिड वेस्ट शुड बी फिल्ड अप। इसके बाद हमें फिर से कौन सी लेयर डालनी है? सॉलिड वेस्ट की लेयर। यहाँ पर खाली ये याद रखना है, यहाँ पर जो क्ले है वो खाली हमें बॉटम पे यूज करना है। उसके बाद हमें क्ले का यूज नहीं करना है। हमें पता है क्ले हमें क्यों यूज किया बॉटम पे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सीपेज ऑफ द लीचेस इनटू द ग्राउंड वाटर। उसको बचाने के लिए हमने क्ले का यूज किया है। अब यहाँ से नेक्स्ट लेयर जो स्टार्ट होगी वो सॉलिड वेस्ट से होगी। फिर से इसी अर्थ के ऊपर हम डालेंगे सॉलिड वेस्ट, दिस द सेकंड लेयर। सॉलिड वेस्ट का यूज करेंगे एंड सेम प्रोसीजर यहाँ पर यही रहेगा कि जो थिकनेस इस लेयर की वो कितनी रहेगी? 1.5 मीटर। ठीक है, ऐसे ही हमें लेयर डालनी है जो जैसे हमने यहाँ पर डाली। इसके बाद फिर से हमें इसके ऊपर अर्थ का यूज करना है, इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट लेयर में यूज किया। एंड ऑल्सो हियर द थिकनेस ऑफ सच अर्थ शुड बी 20 सेंटीमीटर। इसकी भी जो थिकनेस वो 20 सेंटीमीटर रहेगी। हो गई सेकंड लेयर। उसके बाद हम इस सेकंड लेयर को भी कितने डेज के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे? 7 days के लिए। सो आफ्टर 7 days द नेक्स्ट लेयर दैट इज थर्ड लेयर शुड बी फिल्ड अप ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड लेयर। यहाँ पर भी ऐसे ही। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है हम कितनी लेयर्स इसके ऊपर डालें। ये जो थर्ड लेयर है यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, थिकनेस हर एक लेयर में सेम रहनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर रहेगा। हम इसके ऊपर जितनी भी चाहे 5 लेयर्स या 6 लेयर्स, ये डिपेंड करता है हम पे हम कितने लेयर्स के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर देखना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस सॉलिड वेस्ट में है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
by releasing various gases. गैसेस जो वहां से डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग जो गैसेस निकलेंगे दैट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेस जो वहां से रिलीज हो जाएंगे ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्टेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सॉलिड वेस्टेस हमने लेयर यहाँ पर डाली, चाहे 5 लेयर 6 लेयर कितने भी लेयर्स हम डालेंगे, तो आफ्टर 1 ईयर, अब हम देखेंगे 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर जो रिफ्यूज है और वी कैन से जो सॉलिड वेस्ट है दैट गेट्स सेटल डाउन by about 40%, by about 40% to its original height, to its original height। ओरिजिनल हाइट चाहे हमने 5 लेयर्स डाली या 6 लेयर डाली, यहाँ पर देखना है जो 6 लेयर्स की जो हाइट थी उस टाइम, ठीक है, जो हमने 6 लेयर्स की हाइट वहां पर चाहे हम मेजर करेंगे, तो वहां पर देखना है जो ओरिजिनल हाइट थी वहां पर, तो वो 40% कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये नीचे नीचे दब के 40% कम हो जाएगा टू इट इज ओरिजिनल हाइट। दैट इज वाई हम देखते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट हमने यहाँ पर डिस्पोज, जो हमने सॉलिड वेस्ट यहाँ पर किया, तो इट टेक्स टाइम फॉर फिलिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। इसलिए हम देखते हैं कि जो लो लाइंग एरियाज है जो हमने यूज किया है फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, उन एरिया में इसीलिए टाइम लगता है टू फिल अप सच लैंड, वहां पर टाइम लगता है क्योंकि ये जो सॉलिड वेस्ट हम डालते जाते हैं लेयर बाय लेयर, तो वहां पर हम देखते हैं कि 1 साल के बाद वो 40% कम हो जाते हैं। तो आफ्टर 2 ईयर्स वो 80% कम हो जाएगा ओबियसली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 2 साल में वो 80% कम हो जाए, दैट मीन्स 20% ही वहां पर वो लैंड फिलअप हो जाएगा, इसीलिए वहां पर वो टाइम लगता है उन एरियाज को फिलअप होने में। एंड दिस इज द फर्स्ट method for the disposal of the solid waste. Now the second method. Is the second method, that is incineration. Incineration here means burning. यहाँ पर incineration in this type of method, these solid wastes they are burned. Solid wastes they are burned. तो एक इक्विपमेंट हम यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस इंसिनरेशन। द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सच प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिनरेटर। इंसिनरेटर एक इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं फॉर दिस प्रोसेस इंसिनरेशन। तो इसमें हम सॉलिड वेस्ट को इंसिनरेट करते हैं, सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं। तो आफ्टर द कलेक्शन, जब हम कलेक्शन करते हैं सॉलिड वेस्ट का, आफ्टर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, तो वहां पर कलेक्शन के बाद यहाँ इस प्रोसेस में ये जरूरी बनता है कि हम सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन के बाद हम उसको सेपरेट करें, जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम सेपरेट करें इनटू combustible and non-combustible, or we can say inert materials, non-combustible, combustible और inert materials, उनको हमें सेपरेट करना है। क्यों सेपरेट करना है? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लोड ऑन द इंसिनरेटर्स। हमें इस नॉन कंबस्टिबल वेस्ट जो है या इनर्ट मटेरियल जो है उसका लोड कम पड़ जाएगा, इससे लोड बढ़ जाएगा। अगर हमने नॉन कंबस्टिबल वेस्ट को भी इसी में डाला, इंसिनरेटर में डाला, तो उस पर लोड बढ़ जाएगा। हमें हमारे लिए ये बेटर रहेगा कि हम कंबस्टिबल वेस्ट को ही इंसिनरेट करें। नॉन कंबस्टेबल तो ये हम इसको अगर इंसिनरेट में, तो ये वैसे भी वैसे ही निकलेगा, इनको बर्न होना ही नहीं है इसमें। तो इससे बेटर है, ये हमारे लिए बेटर है कि कलेक्शन के बाद हम इनको अलग अलग करें, कंबस्टेबल को अलग करें, नॉन कंबस्टेबल को वेस्ट को अलग करें।
तो हम कंबस्टिबल वेस्ट को इंसिनरेटर में डालेंगे, इससे जो नॉन कंबस्टिबल हमने पहले ही सेपरेट किया, इससे जो है कि हम इसको लोड जो इसके ऊपर बढ़ जाएगा वो हम कम करें। जो टेम्परेचर इस इंसिनरेटर में होना चाहिए, that should be greater than temperature in incinerators should be greater than 670 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा ही होना चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम जो टेम्परेचर है दैट इज 670 डिग्री, ये मिनिमम टेम्परेचर है इस इंसिनरेटर में। इसमें इतना, ये हम क्यों इतना टेम्परेचर रखते हैं इसमें, in order to incinerate all the organic matter, all organic wastes and to first one and this second one, and to oxidize all foul smell arising from solid waste। इस टेम्परेचर से एक तो हम इंसिनेट कर सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, और दूसरा जो फाउल स्मेल जो सॉलिड वेस्ट निकलेगा उसको भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इस टेम्परेचर से, इसलिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है सॉलिड वेस्ट में, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट जो है अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट इज हाई, तो वहां पर हम ऑक्सिलरी फ्यूल का भी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स एडिशन, हम ऐड कर सकते हैं फ्यूल्स का, ऑक्सिलरी फ्यूल शुड बी यूज्ड। तो वहां पर हमें और फ्यूल का यूज करना है टू इंसिनरेट दीज सॉलिड वेस्ट्स। फाइनल जो प्रोडक्ट रहता है इस इंसिनरेशन प्रोसेस में, जो इंसिनरेशन मेथड है फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट्स, तो वहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो आता है दैट इज एशेस, क्योंकि हमें पता है बर्निंग के बाद एशेस ही मिलेंगे यहाँ, और क्लिंकर्स। Clinkers here are the stony materials. These are the stony materials or we can say stony residue जो बर्निंग के बाद हमें मिलेगा। तो these ashes यहाँ पर हम ashes को डंप कर सकते हैं, ठीक है, these ashes should be dumped and these clinkers can be used as road materials, हम इसको road materials में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहता है इंसिनरेशन प्रोसेस, कैसे हम इंसिनरेट कर सकते हैं, कैसे हम बर्न कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को। तो यहाँ पर हमारे लिए यही बेटर है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम सेपरेट करें, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लोड ऑन द इंसिनरेटर्स। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी 670 डिग्री मिनिमम रहना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द इंसिनरेशन प्रोसेस। तो आज के लिए हम लैंड फिलिंग और इंसिनरेशन जो दो मेथड्स है ये हमने पढ़े। नेक्स्ट जो टू मेथड्स है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। So it is all about for today.